اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان جماعت کی خواتین کو وہ یہاں پر نیچے جمع ہو جائیں. استقبال کیجئے سینیٹر سراج الحق صاحب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینیٹر جناب سراج الحق ہمارے درمیان موجود ہیں. وقت کا ریلیوں کا اہتمام کیا ہے اور بارش برستی بارش کے اندر آج اسلام آباد میں اسلام آباد کی خواتین نے ہزاروں کی تعداد رکھنے والی خواتین موجود ہیں. جماعت اسلامی اس بات کا دعویٰ کرتی ہے اور اعلان کرتی ہے خواتین کے حقوق کا تحفظ کریں گے. آج کی ہماری اس ریلی میں سابق ممبر قومی اسمبلی محترمہ عائشہ سے دعوت دے رہا ہوں. سابق ممبر قومی اسمبلی محترمہ عائشہ. پنجاب ڈاکٹر طارق صاحب، ڈپٹی جنرل سیکرٹری سکینہ شاہد صاحبہ، سمینہ احسان صاحبہ، ان کی پوری ٹیم، اور اسلام آباد کی جنرل سیکرٹری، راولپنڈی کی جنرل سیکرٹری، تمام کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے السلام علیکم. اور میں میڈیا کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ اس اہم موقع پہ انہوں نے اچھی کوریج دی، اور ہم امید رکھیں گے کہ آئندہ پاکستان کی بیٹی کی حفاظت کے لیے میڈیا ہر اول دستہ بنے گا انشاءاللہ. جماعت اسلامی حلقہ خواتین، ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی زوجہ کو، اور پھر ان سے بہت ساری نسلیں پھیلا دی. ہم مرد اور عورت کو گاڑی کے دو پہیوں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے لازم و ملزوم سمجھتے ہیں. حلقہ خواتین جماعت اسلامی اس بات پر فخر کرتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے سائے میں رہتے ہوئے اپنے تمام فرائض انجام دے. وہ اپنے بیٹے کی سرپرستی میں اپنے تمام فرائض سر انجام دے، اور اپنے بھائی اور اپنے شوہر اور ہم اکائیوں میں تقسیم نہ ہوں، بلکہ ہم اس زندگی کو چلانے کے لیے ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوں. جماعت اسلامی حلقہ خواتین پاکستان کے لیے ایک رحمت ہے. حلقہ خواتین جماعت اسلامی جہاں گھر گھر، گلی گلی، کوچے کوچے اسلام کی دعوت دیتی ہے، قرآن کا پیغام پہنچاتی ہے، وہاں تعلیم کے میدان میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں چیریٹی کے ہزاروں ادارے قائم کیے ہوئے ہیں، اور لاکھوں بچے حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی اس نیٹ ورک کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو کہ حکومتی ذمہ داری تھی، لیکن خواتین نے اس پہ بڑھ کے کام کیا. حلقہ خواتین جماعت اسلامی صحت کے میدان میں، جماعت اسلامی حلقہ خواتین ملک میں قدرتی آنے والے آفات میں، ملک کی جو مسائل ہیں اس کے حل کرنے میں، غربت کے خاتمے میں، خواتین کو روزگار کی فراہمی کے خاتمے کے لیے، اور بے آسرا خواتین اور بچوں کے لیے صاحبان کا کردار ادا کر رہی ہیں. اس وقت میں جماعت اسلامی کا چارٹر آف ڈیمانڈ اس تمام ریلی کی طرف سے، حکومت پاکستان سے، اس پورے معاشرے سے میں اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر رہی ہوں. اور ہم چاہیں گے کہ بجائے اس کے کہ خواتین اپنے حقوق کے لیے نکلیں، ہم یہ نہیں چاہتے تھے. ہم چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ہاں 14,000 سال پہلے جو حقوق مل گئے ہیں ان کو
14,000 साल पहले जो हुकूक मिले हैं वो आज भी उनको दिए जाए। जब बेटी को जिंदा दरगोर किया जाता था और उसको जिल्लत का सबब बनाया जाता था, तो आज भी हम ये डिमांड करते हैं कि ख़वातीन को हुकूक दिए जाएं। हुकूमत पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे, तमाम इदारे अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें, तमाम सियासी पार्टियां अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें और तमाम भाई अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करें। जमात इस्लामी हल्क़े ख़वातीन की इस रैली की डिमांड, सबसे पहली चीज़ जो हमारे मुल्क में औरत को विरासत से महरूम रखा जाता है, हमारा मुतालबा है कि आसान इंसाफ की फराहमी हो और ख़वातीन को विरासत में हिस्सा मिले। ख़वातीन मुख्तलिफ मैदानों में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। घरेलू ज़िंदगी में मुल्की मशीनरी की चलाने में ख़वातीन अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम उनके लिए कोई ऐसा ख़ास नहीं है कि वो बाइज़्ज़त और महफूज तरीके से अपने वर्किंग प्लेस पे और अपने बच्चों को मुख्तलिफ इदारों में छोड़ने के हवाले से, घरेलू जिम्मेदारियां निभाने के हवाले से वो किरदार अदा करें। ख़वातीन ज़च्चा और बच्चा, कितनी ख़वातीन हैं जो ज़चगी के दौरान ज़िंदगी से महरूम हो जाती हैं। हमारा जमात इस्लामी हल्क़े ख़वातीन का मुतालबा है कि ख़वातीन को मुकम्मल सेहत का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इंडस्ट्रीज़ में ठेकेदारी निज़ाम ख़त्म करके ख़वातीन को मुस्तकिल किया जाए और उनको एडहॉक बेस पे और उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनके हुकूक को पामाल ना किया जाए। कुरान से शादी और कारोकारी जैसे जालिमाना रसूमात का खात्मा किया जाए। तमाम ज़राए इब्लाग और तमाम इदारे, तमाम कंपनियां जो औरत को कारोबार का जरिया बनाते हैं, जमात इस्लामी हल्क़े ख़वातीन का ये मजमा मुतालबा करता है कि पूरी कौम को ख़वातीन को ख़रीद व फ़रोख्त का ज़रिया ना बनाया जाए और उनको इज़्ज़त और तकरीम दी जाए। औरतों को इश्तिहारात का सामान ना बनाया जाए, कारोबार के ज़राए ना बनाया जाए। दफातर और सनती इदारों में काम करने वाली ख़वातीन, उनको मसावी हुकूक दिए जाएं, उनके हुकूक तल्फ ना किए जाएं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको हैरेसमेंट से बचाया जाए। उनके लिए हुकूमती इदारे भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करें। बहुत सारी ख़वातीन, 70% ख़वातीन जो कि देहातों में रहती है, तालीम से इसलिए महरूम है कि उनके लिए कोई अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग इदारों का क़याम नहीं है। जमात इस्लामी हल्क़े ख़वातीन की ये रैली हुकूमत पाकिस्तान से भरपूर मुतालबा करती है कि ख़वातीन के लिए हर ज़िले की सतह पर अलग यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाए। और हमें इसमें फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हल्क़े ख़वातीन जमात इस्लामी जहाँ मैदान में अपनी कारकर्दगी का भरपूर मुज़ाहिरा करती हैं, वहीं जब भी पार्लियामेंट में आई हैं तो जैसे भी मुल्की इश्यूज़ हैं, चाहे वो ख़वातीन के हैं, चाहे वो पूरे माशरे के हैं, उन्होंने भरपूर तरीके से उठाया। और मैं इस बात का ऐलान भी करती हूँ, आज जो ज़ैनब कत्ल का बिल जो मंजूर हुआ कि मुजरिम को फांसी दी जाए और जमात इस्लामी ने हिमायत की, ये जमात इस्लामी हल्क़े ख़वातीन का नेशनल असम्बली में पहला बिल था। जब ज़ैनब केस हुआ और ये बिल हमने पेश किया कि खुदारा ऐसे मुजरिमों को सरेआम फांसी दी जाए ताकि आइंदा इसी तरह से ऐसे मसाइल का और इस तरह से बेटियों को जिंदा दरगूर करने के जो वाक़यात हैं वो सामने ना आए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मुतालबा करती है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को बाइज़्ज़त तरीके से मुल्क में वापस लाया जाए। और मैं उनका भी ज़रूर जिक्र करूँगी जो 122 दिन से अपने घरों में कैद हैं, बुनियादी वसाइल से महरूम हैं,
और जुल्म की इंतहा में जुल्म की एक इंतहा है जो मोअज़्ज़ज़ खातीन बहनों, कलीदी खिताब का वक्त हुआ चाहता है। जो खातीन साइडों पे हैं, फुटपाथ पे हैं, वो भी सामने पंडाल में आ जाए। रब से मुखातिब होते हैं कराची से लेकर खैबर तक, चित्राल के पहाड़ों से लेकर गवादर के साहिल तक, मिंबर से लेकर अटमुकाम तक 22 करोड़ पाकिस्तानियों के कायद इस मुल्क के मजदूरों, मेहनत कशों, किसानों और खातीन की सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत मोहतरम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेंटर जनाब सिराजुल हक साहब, नारे तकबीर, रहबर और रहनुमा। पाकिस्तान का मतलब क्या? कौमों की इज्जत हमसे, कौमों की इज्जत हमसे, हम आए, हम बहनें, हम बेटियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादर मोहतरम, मियाँ मोहम्मद असलम साहब, जनाब डॉक्टर तारिक सलीम साहब, जनाब नसरुल्लाह रंधावा साहब, मोहतरम भाई ज़ुबैर, मोहतरमा आयशा सैयद साहिबा, मोहतरमा नुसरत बहन और इस अज़्म-ए-शान रैली में शरीक वाजिबुल एहतराम माओ, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस्लामाबाद के बहनों को इस अज़्म-ए-शान रैली के इनेकाद पर अपनी तरफ से भी पाकिस्तान के अवाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोगों ने जिस अज़ीम काज और मकसद के लिए ये मुजाहिरा किया, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हर कदम के बदले, हर नारे के बदले, हर लफ्ज़ के बदले, हर नज़र के बदले अजर अज़ीम अता फरमाए। मुझे एक सहाफ़ी दोस्त ने बताया कि ये इस्लामाबाद की तारीख़ में ख़वातीन का बड़ा प्रोग्राम है और आपका ये प्रोग्राम पाकिस्तान की जमहूर की नुमाइंदगी करता है और न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि आप पूरी इंसानियत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये सारी इंसानियत अल्लाह ताला का कुंबा है और ये कुंबा ये मर्दों का नहीं है। इस कुंबे में मर्द भी है और औरत भी है और इस कुंबे में कोई मर्द औरत का खुदा नहीं है और ना कोई औरत मर्द का खुदा है। कोई मर्द बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है। कोई औरत अच्छी भी नहीं है, बुरी भी नहीं है। हमारे दीन का हुक्म यह है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। जो तक़वादार खातून है वो मर्द से जो बदकिरदार है बहुत बेहतर है और जो अच्छे किरदार का मर्द है वो बहुत अच्छा है ख़वातीन से। इसलिए हमारे यहाँ ज़ात पात का ऐसा कोई तस्वुर नहीं है कि जिस तरह हिंदू में कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है,
कोई कश्ती है और उनका ये तस्वुर कि कोई चेहरे की तरफ से पैदा हुआ है और कोई पाँव से, मर्द हो या औरत हो, एक ही रास्ते पर इस दुनिया में आए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के बाद इस कायनात में मुक़द्दस हस्ती वो अम्बिया है, लेकिन उन तमाम अम्बिया ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समेत उन्होंने ख़वातीन के गोद में परवरिश पाई है। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि नबूवत के बाद कायनात में जो सबसे बड़ा इदारा है, नबूवत के बाद सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन वो औरत है। और औरत का इदारा ये वो इदारा है जिसमें सारी इंसानियत को परवरिश मिलती है, जिसमें सारी इंसानियत को सुकून मिलता है, इज्जत मिलती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस औरत को बंदर की तरह चौकों और चौराहों में नचवाने की कोशिश करते हैं, वो इंसानियत का खैर ख्वाह नहीं है, न मर्दों का खैर ख्वाह है, न औरतों का खैर ख्वाह है। बहनों, पुरानी तहजीब, यूरोपी तहजीब हो, जदीद तहजीब या रूमी तहजीब हो, यूनानी तहजीब हो या अरबों का पुराना मुआशरा हो, उनका तस्वुर यही था कि बुराई की जड़ ये तो औरत है। उनका तस्वुर यही था कि ये तो मर्द के लिए ऊँट का तस्मा है। उनका तस्वुर यही था कि एक औरत का बेहतरीन मेहमान वो उनके लिए मौत है। तभी तो इनको बच्चों को जिंदा दरगोर करते थे। लेकिन इस्लाम आया, रहमतुल लिल आलमीन आए, उन्होंने फरमाया कि औरत खुशबू मुझे पसंद है और सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कीमती मता और सरमाया है तो वो एक औरत है। तो दुनिया उसको जिंदा दरगोर करती थी बच्चियों को। और हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पर खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं कि जिसने फातिमा को परेशान किया, नाराज किया, उसने मुझे परेशान किया। और ये लोग ख़वातीन के मंडियाँ लगवाते थे, भेड़ बकरियों की तरह खरीद और फरोख्त का अमल करते थे। लेकिन मेरे नबी मेहरबान ने फरमाया ये भेड़ बकरी नहीं है, इनके कदमों में जन्नत तलाश करो। और फरमाया इत्तकू फिन्निसाए, ख़वातीन के मसले में, मामले में अल्लाह से खौफ करो, अल्लाह से डरो। इसलिए इस्लाम ने माँ का मुकाम, औरत का मुकाम, बेटी का मुकाम, बहन का मुकाम दिया। और आपको याद है कि इस्लाम ही ने उनको निजी मामलात में भी और सियासी मामलात में मुशावरत में शरीक किया, सियासत में शरीक किया, वरासत में हक दिया, महर का हक दिया। और इस्लाम ने ख़वातीन को तालीम का हक दिया। और मेरे नबी का हुक्म है कि इल्म हासिल करना फ़र्ज है हर मर्द पर भी और हर खातून पर। और यही वजह है कि हमारे दीन में, हमारे शरीयत में एक बहुत बड़ा इल्म का वो सरमाया जो हज़रत आयशा सदीक़ा से इस उम्मत को पहुंचा है। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जो हमारी समझ में नहीं आते थे, तो हम जाकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मालूम करते थे, वो रहनुमाई करते थे। क्या आपको याद है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ फातिमा जो वफ़ात हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनके लिए लहद तैयार किया। और कब्र तैयार होने के बाद वो खुद कब्र में उतर गए, उसमें लेट गए
उनकी सफाई का, उनके चौड़ाई और लंबाई मालूम की। और फिर क्या हुआ, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चादर मुबारक उसको पेश किया। और ये कायनात में पहली खातून है कि जिसको एक नबी और नबी आखिर ज़मान ने अपना चादर देकर उससे मतीउल्लाह जान वही उसके लिए कफन बनाया। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इस्लाम ने इसको इज्जत दी। ये जो दुपट्टा है, ये जो चादर है, ये इज्जत का ताज है जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे बहनों और बेटियों को दिया है। मैं मानता हूँ आज मगरिब में हमारे वहाँ के बच्चियाँ मजलूम हैं, इसलिए कि वो बाप की शफ़क़त से महरूम हो गए। वो बहन मगरिब का वो अपने भाई की खिदमत और मोहब्बत से महरूम हो गई है। वहाँ की औरत आज अपने शौहर के वफादारी से महरूम हो गई है, उनके साथ कुछ नहीं रहा। और तभी वो कहती है कि मेरी जिस्म मेरी मर्जी, इसलिए कि जिस्म के अलावा मगरिब के ख़वातीन के साथ अब कोई चीज़ नहीं रही। लेकिन हमारी सोसाइटी में एक माँ, एक बहन, एक बेटी और घर का मलका उतने ही पावरफुल है, इसलिए कि घर मर्द का नहीं है, वो औरत का भी है। हमारे पुश्तों में एक शायर कहता है कि हमारे माशरे में एक औरत का क्या मुकाम है। वो कहते हैं कि यौम प्लार सलूर मिरुना कि सर सर तौर पकम पटाइम भयमा। वो कहते हैं शायर कि एक मुसलमान खातून, उसका एक बाप है जो उनका साया है, और उनके 4 भाई है जो उनके पासबान है। वो कहती है कि अगर मेरे सर पर दुपट्टा ना भी हो तब भी किसी का नजर बद मुझ तक नहीं पहुंच सकता है, इसलिए कि इस्लाम ने भाई की सूरत में, भाइयों की सूरत में, शौहर की सूरत में, औलाद की सूरत में मुझे एक हसार दिया है, एक पासबान दिया है, एक चौकीदार की दिया है, एक खादिम दिया है। मैं भी एक बाप हूँ और बाप के हैसियत से अल्लाह ने मुझे भी औलाद नरीना भी और बच्चों से नवाजा है। मैंने अपने बच्चों से कहा है कि अगर एक मसले में मैं भी आपको हुक्म दूँ और आप लोगों की माँ भी आपको हुक्म दे तो आपने किसका मानना है। मैंने समझाया कि अगर एक मसले में बहैसियत बाप मेरा ऑर्डर हो और बहैसियत माँ तुम्हारी माँ का हुक्म हो तो आपने बाप की बजाय, मेरे हुक्म के बजाय अपनी माँ का हुक्म मानना है। इसलिए कि नबी मेहरबान ने फरमाया कि एक सहाबी को कि पहला हक भी माँ का, दूसरा हक भी माँ का, तीसरा हक भी माँ का, और बाप के हैसियत से मेरा चौथा नंबर है। मैं इसलिए आज उन बच्चों से भी बात करना चाहता हूँ जो कुछ जगहों पर निकलती है और प्ले कार्ड उठाती है, बैनर लगाती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैं उनसे हमदर्दी का इजहार करता हूँ, मैं उसको दुश्मन नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि शायद मुआशरे ने उस पर जुल्म किया है, शायद कोई तलाक याफ्ता खातून है और शौहर ने उस पर जुल्म किया है, शायद किसी खातून के साथ उनके ख़ानदान वालों ने जुल्म किया है। मैंने फैसला किया है कि मैं इंशाअल्लाह ख़वातीन की क़ियादत में, अपने बहनों की क़ियादत में एक जरगा बनाकर उनसे बात करने के लिए भेजूँगा कि वो अपनी डिमांड, अपने मुतालिबात, अपनी ज़रूरियात और अपने साथ साथ हम तक पहुँचाए। और मैं एक शफीक और मेहरबान भाई की हैसियत से उनके मसाइल, उनकी ज़रूरियात पर इंशाअल्लाह ताला सेनेट में भी बात करूँगा। आप अपने आप को तनहा न समझे,
मैं आपका भाई भी हूँ और मैं आपके हर मसले के लिए आवाज़ उठाने वाला भी हूँ। इसलिए पाकिस्तान की सोसाइटी ये मर्दों का सोसाइटी नहीं है, ये औरतों का सोसाइटी नहीं है, ये इस्लामी सोसाइटी है। इसमें मर्द का अपना मुकाम, इसमें औरत का अपना मुकाम, और जो लोग आपको इन हुकूक देने के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं, हम इंशाअल्लाह ताला मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। मैं तो आप पर फख्र करता हूँ। हमारे कौमी असम्बली में गुज़श्ता सेशन में बिल डेक ने सर्वे किया कि इन बड़े ईवान में कौमी असम्बली में किसकी कारकर्दगी बेहतर है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ तो पूरी ईवान में सबसे अच्छी कारकर्दगी जो टॉप 10 में भी टॉप 10 में थे वो हमारे दो बहनों की कारकर्दगी है। मैं उनको इसलिए जिक्र करना चाहता हूँ कि आप लोगों को मालूम हो सके कि एक खातून पर्दे में रहकर अपनी चादर के साथ, अपनी दुपट्टे के साथ वो ईवान में आवाम के एक मुंतखब लीडर और एक क़ियादत की सूरत में भी बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती है। उसमें हमारी एक बहन का नाम नईमा कश्वर साहिबा है और हमारी दूसरे बहन का नाम मोहतरमा आयशा सैयद साहिबा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम तो चाहते हैं कि हमारे बहनें डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, जहाज में बैठकर पायलट बने और चांद तो क्या मरीख की तरफ सफ़र करे। इसलिए कि इस्लाम तुम्हारे तरक्की के रास्ते में रुकावट नहीं है, बल्कि इस्लाम का पैगाम यही है कि वो जाहिदु फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही, जितना आप कोशिश कर सकते हैं आगे बढ़ना। मोहतरम बहनों, इसलिए मैं उस चार्टर की हिमायत का ऐलान करता हूँ जो आज आयशा सैयद साहिबा ने यहाँ पेश किया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी में ख़वातीन को एक बड़ा रुतबा हासिल है और यही बहनें और यही माएँ दूसरे पार्टियों की तरह सिर्फ जमात इस्लामी में सपोर्टर नहीं हैं, ये हमारे यहाँ फैसलों में शरीक है हमारे साथ। हमारे मुंतखब मरकज़ी शूरा में मुंतखब अरकान की हैसियत से हमारे पास ये मौजूद रहती है, हिस्सा लेती है, डिस्कशन करती है, तनकीद करती है, एहतसाब करती है, फैसला साजी में अपने हिस्से का काम करती है। परसों में मंसूरा में था, मैंने एक बच्ची की निकाह पढ़ाई। आप यकीन करें वो मेडिकल डॉक्टर थी और उसने अपने कॉलेज में 25 मेडल्स हासिल किए थे। अपने पर्दे, अपने चादर और अपने दुपट्टे के साथ उन्होंने मुमताज़ मर्तबा और मुकाम हासिल किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपनी हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि इस हुकूमत में तो मर्द भी परेशान है, औरत भी परेशान है, किसान भी परेशान है, देहान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, लड़कियां भी परेशान, लड़की भी परेशान। इसलिए कि हर इंसान इस निज़ाम में तकलीफ में है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा यही डिमांड है कि हमारे बहनों को वरासत में हक दिया जाए। ये उनका हक है, ये खैरात नहीं मांग रही है, ये अल्लाह ने उनको दिया है, अल्लाह के रसूल ने उनको दिया है। और आज मैं फिर ये मुतालिबा दोहराऊंगा कि जो मर्द अपने बहन को वरासत में हक ना दे उसको इलेक्शन कमीशन एक उम्मीदवार की तौर पर कंसिडर ना करे। और मैं बहैसियत अमीर जमात इस्लामी ऐलान करता हूँ कि आइंदा इलेक्शन में मैं किसी ऐसे उम्मीदवार को जमात इस्लामी का टिकट नहीं दूंगा जो अपने बहन को मीरास में हक न दे और मुझे ना बताए कि मैंने अपना हक दिया है। इसलिए इस नीकी का आगाज़, इस इनकलाबी अमल का आगाज़ मैं अपनी जमात से करूँगा। महर का हक है, नहीं मिलता है, तालीम का हक है। पाकिस्तान में
बच्चों के लिए तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। मेरा ये मुतालबा है कि हमारे बहनों को हर जगह पर अलहदा यूनिवर्सिटी दी जाए। मैं जब खैबर पख्तूनख्वा में फाइनेंस मिनिस्टर था तो मैंने 2003 और 2004 में बहनों के लिए अलहदा यूनिवर्सिटी बनाई थी, बहनों के लिए अलहदा मेडिकल कॉलेज बनाया था। मैं इस वक्त की हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि कुल तालीमी बजट को 2.7 से बढ़ाकर 5% तक पहुँचाया जाए और फिर उस कुल तालीमी बजट में 33% वो बच्चों के लिए ख़ास किया जाए। गुज़श्ता डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ ने फैसला किया था कि बल्दियाती इदारों में ख़वातीन को 33% हिस्सा दिया जाए। मैंने उनसे भी कहा था कि बल्दियाती इदारों में ख़वातीन को हिस्सा देना अपनी जगह पर, लेकिन उनको तालीमी बजट में 33% हिस्सा दे, इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो, ये उनका हक है। मैं आपके इस डिमांड के साथ 100% मुतफिक हूँ कि हमारे इस मुल्क में दफातर में और इदारों में जो काम करने वाले बहनें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है और हर वक्त वर्किंग वमेन को एक ख़तरा दरपेश होता है। मैं चाहता हूँ कानून साजी करे हुकूमत और हर दफ्तर में काम करने वाली बहन को तहफ़्फ़ुज़ पर अहम किया जाए। मेरे बहनों, मैं आपके साथ खड़ा हूँ कि पाकिस्तान में, इस पाकिस्तान में जहाँ इस वक्त मर्द भी परेशान है, लेकिन आज तो हम आए हैं ख़वातीन के लिए बात करने। मैं चाहता हूँ हर देहात में एक बेसिक हेल्थ यूनिट हो हमारे बहनों के लिए। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि ख़वातीन के लिए अलहदा ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम हो, इसलिए कि शहरों में ख़वातीन को बहुत बड़ी मुश्किल दरपेश है। ट्रेन में उनके लिए, जहाज़ों में उनके लिए, अड्डों में उनके लिए कोई निज़ाम नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ख़वातीन के लिए ट्रांसपोर्ट का अलहदा इंतज़ाम किया जाए। मैं आज यह भी मुतालबा करना चाहता हूँ कि बिला सूद कर्ज़ दिया जाए, खुसूसन वो माएँ और बहनें जो अपने बच्चों की कफ़ालत करती है, उनको घर बनाने के लिए कर्ज़ा दिया जाए, उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्ज़ा दिया जाए। आज मैं ये भी मुतालबा करना चाहता हूँ माओ, बहनों और बेटियों कि इस मुल्क में जो गलत रसूमात मौजूद है, कुरान से शादी करने का, कारोकारी और इस तरह बहुत सारे खुद जहेज का एक गलत रस्म मौजूद है, जिसके वजह से लाखों करोड़ों बच्चों को मुश्किल का सामना है, वालिदैन को मुश्किलात का सामना है। ये तमाम रसूम इसको ख़त्म किया जाए और जो भी इस पे अमल करता है उनके लिए सज़ा हो। मेरे बहनों और मेरे बेटियों और वाजिबुल एहतराम माओ, आज का दिन हम याद करना चाहते हैं उन फ़लस्तीनी माओं की तरह जो आपकी तरह जद्दोजहद कर रही हैं, कश्मीरी माओं की तरह, ख़ासकर आसिया अंदराबी जो गुज़श्ता 27 सालों से जद्दोजहद कर रही है, जिनका शौहर 31 सालों से जेल में मौजूद है। अफ्रीका में एक नेल्सन मंडेला था और यहाँ हर बुजुर्ग एक नेल्सन मंडेला है। मखबूजा कश्मीर में, आज हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान माए, बहनें और बेटियाँ मुश्किल से दो चार है। आज अफ़गानिस्तान में हमारे माए, बहनें और बेटियाँ मुश्किल से दो चार है। हम उन तमाम माओ, बहनों और बेटियों के साथ यकजहती का ऐलान करते हैं और मैं पूछना चाहता हूँ अपनी हुकूमत से कि उसने डॉक्टर आपिया के रिहाई के लिए कुछ नहीं किया। डॉक्टर आपिया बहुत मज़लूम औरत है, लेकिन आज के लम्हे में जब तालिबान और अमेरिका का मुआहिदा हुआ है, आज के लम्हे में जब उन्होंने ये मुआहिदा किया है कि जंग में गिरफ्तार 50,000 कैदियों को रहा किया जाएगा,
जिसने भी अमरीकियों से लड़ाई लड़ी है, गिरफ्तार हो गए हैं, उनको रहा किया जाएगा। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से पूछना चाहता हूँ कि अगर तालिबान अपने 5000 कैदियों की रहाई की बात कर सकते हैं तो आप क्यों गूंगी और बेरी हुकूमत बन गई है? डॉक्टर आबिया के रिहाई के लिए इन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। जनाब इमरान खान साहब 2 बार अमेरिका गए और वापस आए। जब इक़्तिदार में नहीं आए थे, इस इमरान खान साहब ने कई बार जाकर डॉक्टर आबिया की माँ के साथ, उनकी बहन डॉक्टर फौजिया के साथ ये वादा किया कि अगर मुझे इख्तियार मिला तो मैं पहले मरहले में डॉक्टर आबिया की रहाई के लिए एक्शन लूँगा। लेकिन जाते हैं खामोशी के साथ, आते हैं खामोशी के साथ, और आप तक इस हुकूमत ने डॉक्टर आबिया के रहाई के लिए कोई संजीदा इक़दाम नहीं किया। माओ, बहनों और बेटियों, अभी इस हुकूमत ने एक कानून पास किया है ज़ैनब इलल के नाम से, इसलिए कि ज़ैनब की असमत दरी भी की गई और उनको कत्ल भी किया गया, और फिर उसके बाद फरिश्ता को भी कत्ल किया गया, मासूमा को भी कत्ल किया गया, कायनात को भी कत्ल किया गया, लुबना भी कत्ल किया गया, और गुज़श्ता कुछ अरसे में 3000 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ अगवा की गई। तो हमारा मुतालबा यही था कि इस तरह दरिंदों को फांसी दी जाए, लेकिन इस कमज़ोर और बुज़दिल हुकूमत ने इस तरह दरिंदों को फांसी देने के बजाय सिर्फ कैद पर इक्तफा किया। हमने ईवान के अंदर भी उस कानून की मुखालिफत की, और मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि ये जो ज़ैनब इलल के नाम से कानून बनाया गया, जिसमें एक मक़तूल बच्ची के कातिल को मौत किया गया है क़िसास से, फांसी से, ये कानून कुरान के खिलाफ, ये शरीयत के खिलाफ, पाकिस्तान के आईन के खिलाफ। हम इस कानून को नहीं मानते, और एक बार फिर कहता हूँ कि कत्ल का बदला कत्ल है। आप पूछे ना फरिश्ता की वालिद से, आप पूछे ना कायनात के वालिदा से, जिन्होंने अपनी बच्ची को दही लेने के लिए बाजार भेजा और वो वापस नहीं आई। फरिश्ते के हाथ में कुरान करीम थमाकर मस्जिद की तरफ भेजा, और 2 दिन बाद उनकी लाश जालियों में मिली। उनके दिल पे क्या गुजरता है जो इन मासूम बच्चों के वालिदैन हैं। इसलिए इन्होंने दरिंदों को सपोर्ट किया, इन्होंने सांप और बिच्छू और अजदाहों को सपोर्ट किया, मासूम बच्चों को सपोर्ट नहीं किया, बच्चों को सपोर्ट नहीं किया। इसलिए मैं हुकूमत पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर इस कानून को तब्दील करें। हम नहीं मानते, ये जुल्म है, ये जबर है, और यूरोप को खुश करने के लिए इन्होंने ये कानून पास किया, मगरिब को राजी करने के लिए इन्होंने ये कानून पास किया, IMF को खुश करने के लिए उन्होंने फांसी की सजा मुअत्तल की। मैं पूछना चाहता हूँ कि जर्मनी और फ्रांस में तो वो हमारे बहनों के सरों पर स्कार्फ तक बर्दाश्त नहीं करते, और आप उनकी खुशी के लिए अपने बच्चों को इन दरिंदों के हवाले करते हैं। मैं समझता हूँ ये जुल्म है, ये जबर है, ये बुज़दिली है। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने तरक्की की तो आप भी तरक्की करेंगे, मर्द भी तरक्की करेंगे। अगर पाकिस्तान में महंगाई, पाकिस्तान में बेरोजगारी, पाकिस्तान में बदअमनी और पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल हो तो मर्द भी परेशान, औरत भी परेशान। इसलिए मेरे साथ आज वादा करें कि आप तमाम बहनें, आप तमाम माएँ इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम के लिए जद्दोजहद करेंगे, अल्लाह के दीन के लिए जद्दोजहद करेंगे, और पाकिस्तान को इस्लामी पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। और मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि ख़वातीन के हुकूक के लिए ये जो मुहिम, ये जद्दोजहद है, ये उसका आखिरी प्रोग्राम नहीं है। इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगा।
मैं ये नहीं मानता हूँ कि साल में 8 मार्च को ख़वातीन की हुकूक के लिए एक डे और एक दिन मनाया जाए। मैं तो साल के 365 दिन आपकी हुकूक के नाम करता हूँ, आपकी इज्जतों के नाम करता हूँ, आपकी हया के नाम करता हूँ, आपके चादरों की नाम करता हूँ, आपके स्कार्फ और दुपट्टे के नाम करता हूँ और आपकी इज्जत और नामूस के नाम करता हूँ। साल में एक दिन नहीं 365 दिन आपके हैं, माँ के हैं, बहन के हैं, बीवी के हैं और अहलिया की है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम या अज़ीज़ या गफ़ार रब्बुल आलमीन। या मेरे अल्लाह मोहतरम सराजुल हक साहब भाइयों और बेटों के हमें हकूक़ मिल सके ताकि ये पाकिस्तान इस्लामी बन सके। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। की नुमाइंदगी की नाज़ मंसूबा मोहतरमा समीना एहसान साहिबा, उनके तमाम नायबीन का, इस्लामी पिंडी और इस्लामाबाद के हल्का खातीन के जिम्मेदारान का और हमारी साबिक करवा दें। बाकी चीज़ें प्ले कार्ड्स वगैरह अपने साथ ले जाएं, उनको डिस्प्ले कर दें। हमसे कामों की इज्जत हमसे हम